So I'm starting up my today's topic. So here, अच्छा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस में हमने देखा था कि जो वेक्टर स्पेस है, अगेन आई एम जस्ट राइटिंग अप द टर्म्स। अच्छा, वेक्टर स्पेस में हमने देखा कि वी हैव कोई भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर हम बात करते हैं, तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट है, अगर कुछ प्रॉपर्टीज अंडर द वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो उसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी कि वीएन इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। वीएन मींस द हैविंग एन ट्यूपल्स, हैविंग एन एलिमेंट्स ओवर द रियल्स। तो इसी तरह से दैट अगर मेरे पास कोई एक सेट है, द सेट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू बी एन, उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, ठीक है। दिस इज अ पीएन, ये हम कल डिस्कशन कर रहे थे। Pn is representing a set of a polynomials of degree less than or equal to Bn. So this polynomial set is also a vector space if I defined the vector addition and a scalar multiplication as follows. अगर मैं vector addition को define करूँ, suppose I consider the P1 and P2. अगर मैं P1 और P2 दो polynomials consider करता हूँ, say the P1x and the P2x are the two polynomials which belongs to the collection of a polynomials of degree less than or equal to bn. If I add up these two, in that case उनका sum जो होगा again belongs to pn. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो polynomial form हुआ है, it is again a polynomial of degree less than or equal to bn. Similarly, if I multiply it with some scalar alpha, then alpha times this p1x is again a belonging to that outer. This is the scalar multiplication. So alpha into p1, you can say that alpha into the a naught plus a1x plus so on a n x power n is equal to be alpha a naught plus alpha a1x plus alpha a n into the x n out there. So means all these again, you can say that अगर मैं इसे देखूं, these are the coefficients. So अगर ये coefficient है, तो this can be represented as a naught plus a1x plus so on. We have a an x power n. So it is again we can define that this pn is a. Similarly, now I'm discussing some notations. To say that some notations में मैं आगे vector space के साथ discussion करता हूँ. Say that I have a CAB. CAB represents a set of all continuous real valued functions defined on क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से कोई दो फंक्शंस डिफाइन करता हूं, से लेता हूं f एंड g बिलोंग्स टू बी द सेट ऑफ अ कंटीन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। अब ये इनका सम जो होगा, अगर मैं इसकी वेक्टर एडिशन को डिफाइन करूं, इट इज आल्सो बिलोंग टू बी CAB. अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करूं, इट आल्सो बिलोंग्स टू बी CAB. So you can say that this CAB, the set of all continuous real valued function defined on the interval a to b, closed interval a to b, you can say here, is a vector space with respect to b, the vector addition and scalar multiplication. तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है. So you can easily check it out and prove on the basis of all the 10 properties are being satisfied. ठीक है. इसी तरह से एक और नोटेशन है which is being represented as a C dash AB. अब C dash या C prime अगर बोलेंगे तो this is the set of all continuous real valued function defined on closed interval a to b which are also
डिफरेंशिएबल, अब c एक बार प्राइम लगा रखा है तो उसका मतलब वन टाइम डिफरेंशिएबल है। अगर मैं c डबल डैश कर देता हूं तो उसका मतलब है टू टाइम डिफरेंशिएबल। इसी तरह से नोटेशन में c पावर n आ जाएगा तो मींस इट इज n टाइम डिफरेंशिएबल। तो which are also differentiable on the interval a to b, and this f dash is also continuous, means उसका जो differentiability होगी वो भी continuous होगी, and real value on the interval a to b. So this is a representation of this set. तो c dash ab जो होगा is also a vector space. तो ये भी एक vector space है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज को देखूं तो आई कैन बी गो विद सम अदर प्रॉपर्टीज लाइक से दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सबस्पेस। सबस्पेस का मतलब है कि एक तरह से अगर हम कोई सबसेट लेते हैं और सबसेट में वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो जो वेक्टर स्पेस की वो सारी की सारी सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इन दैट केस इट इज नोन एज अ सबस्पेस ऑफ अ गिवन वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो यू कैन से दैट लाइक दिस वे। पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं इसकी। सो हाउ द डेफिनेशन कैन बी देयर, let S be any non-empty subset of a vector space V. Let S be any non-empty, हाँ जी बेटा, हाँ प्लीज वेट, काफी है। Yes, sir. So let S be any non-empty subset of a vector space V, then S is said to be subspace of the set V if S is itself a vector space under the same binary operation, that is under the addition and scalar multiplication as defined in the set V। जो वेक्टर स्पेस V है जैसे उसके अंदर डिफाइन किए थे वैसे इसी के अंदर डिफाइन करेंगे। तो अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है तो वी कैन से दैट सेट इज अ सबस्पेस। इसको ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं बाय मैथमेटिकल नोटेशन, ये तो हो गया बाय दैट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो अगर मेरे पास S एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, so S is said to be subspace of V if it satisfies the following axioms। अगर ये फॉलोइंग एक्सियम्स जो सेटिस्फाई करता है, और वो कौन कौन से एक्सियम्स हैं? एक्सियम्स ये हैं कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स लेता हूं सेट S के अंदर से, तो दे आर सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलते हैं कि वो जो सेट है वो एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V की। So we can say that that is number one is for any two elements in the set U plus V belongs to be set. Number two, for any scalar alpha, that is you can say that alpha belongs to be any R and U belongs to be S, we have alpha into U belongs to be S. That is you can say
S, the set should be closed under vector addition, should be closed under following axioms A, X, I, O, M, S. Under the vector addition and scalar multiplication. ठीक है, defined on V, defined as defined in V, you can say that as defined in V, जैसे ही V में डिफाइन की गई वैसे की वैसे. अब इसी सबस्पेस की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड we can discuss some of the examples. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा प्लीज. सर हम वेक्टर स्पेस प्रूव क्यों कर रहे हैं, मतलब इसकी क्या एप्लीकेशंस है? देखिए हम वेक्टर स्पेस क्यों प्रूव कर रहे हैं कि हमने क्या डिस्कशन करना है कि हमारे पास अभी तक तो डिस्कशन चल रही थी, आपने वेक्टर्स को स्टडी किया है इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना, कि ये एलिमेंट्स हैं वगैरह. अब अंडर सम कंडीशंस अब हमने बात करनी है उनके ऊपर प्लेनैरिटी की, कोप्लेनैरिटी की, है ना. तो अंडर व्हाट कंडीशंस वी कैन बी टॉक अबाउट, तो दैट दोस टॉपिक्स विल बी कम अंडर दिस टॉपिक, कि वो प्लेनर है, कोप्लेनर है, उनकी बेसिस क्या है, डायमेंशन क्या है, कितने एलिमेंट्स मुझे लेने चाहिए, उनको कैसे मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या क्या उसके अंदर से क्या दूसरा एलिमेंट भी हम फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं, and whatever the structure it will be help up. तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं it will be come in our mind and that will be solvable using up this linear space. This vector space is also called as a linear space, it's a linear structure. ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज देखिए, there are many different type of spaces in mathematics or in hypothetical structure. In those hypothetical structure, one of such space is a vector space. ठीक है, अब वेक्टर स्पेस को काफी सारा इन्होंने आगे मॉडिफाई करके कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे अगर आप देखें ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है, ए परपेंडिकुलर टू बी है तो वो आप रिप्रेजेंट करते हो द वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी 0, है ना. तो अब वो कैसे स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट होगी, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज को फर्दर एक्सटेंड किया गया एंड दैट प्रॉपर्टीज विल बी कम अंडर द इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, जिसमें प्रोडक्ट स्पेसेस को साथ में डिस्कशन की गई, and that will be also help up with the form of a Hilbert spaces. तो but we are confined only to the vector spaces, तो हम सिर्फ वेक्टर स्पेसेस तक ही रह रहे हैं, जिसमें हम इसका अलजेब्रा डिस्कशन कर रहे हैं थ्रू द मैट्रिसेस. ठीक है, और हम इसकी प्लेनरिटी को डिस्कशन करेंगे और डायमेंशन डिस्कस करेंगे बेसिकली. क्लियर? ठीक है सर. ठीक है सर. अब सपोज आउट द क्वेश्चन इज लाइक, अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, से दैट हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे है कि Vn, अगर मैं Vn लेता हूं तो Vn क्या है, Vn मेरे पास n ट्यूपल्स का एक सेट है ना, which is a vector space. We already discussed of that in the last lecture. So let V3 be a vector space with respect to B, vector addition and scalar multiplication. ठीक है, तो सपोज कर लिया V3 हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, having vector addition and some scalar multiplication out there. तो अभी हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन चेक अप कि अगर मैं कोई भी सेट लेता हूं तो हाउ दैट सेट इज अ सबस्पेस. क्वेश्चन तो ये सबस्पेस वाला आ गया ना, कि सबस्पेस, सपोज मैंने एक सेट ले लिया, लेट एस बी एनी सेट which is a collection of all those elements from a set V3, ठीक है, such that its first element is 0. Is it clear? अब मैंने सेट एस ऐसी कलेक्शन ले ली फ्रॉम अ V3 जिसका जो पहला एलिमेंट है वो 0 है. इट मींस दैट वी कैन राइट दिस सेट एज अ 0, x2, x3 such that this x2 and x3
belongs to be reals because I had defined over the reals. तो हमने V3 की भी बात की थी तो over the reals की बात की थी. So this is a subset of a V3 है ना. अब क्वेश्चन ये, अब V3 का मतलब क्या है? V3 भी देख लीजिए, कल हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा था. इट इज अ कलेक्शन लाइक दिस वे, x1 x2 x3 such that xi belongs to be the reals. ऐसे डिफाइन किया था V3 को. अब क्वेश्चन ये है कि इज दिस सेट एस a subspace of V3? Is this set as subspace of a V3? Yes. How can we check it out? तो हमने जो ये चेक आउट करना है, जो हमने वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की थी, उसी सेंस में we have to be defined up and we will check it out whether our this set as satisfies all those properties. तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? वो प्रॉपर्टीज हमारे पास थी कि इट शुड बी क्लोज्ड अंडर एडिशन, इट शुड बी क्लोज्ड अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को हम चेकआउट करेंगे टू प्रूव इट आउट वेदर दिस एस इज अ सबस्पेस और नॉट, कि ये जो एस है वो सबस्पेस है कि नहीं है. ठीक है. सो नाउ विल चेक इट आउट कि वेदर दिस एस इज अ सबस्पेस और नॉट. तो आई कंसिडर अब, so I consider up any two elements from the set S. ठीक है. Where अब अगर मैं सेट S में से ले रहा हूं तो you should satisfy the proper definition of the set S. तो मैं U ले लेता हूं 0, U2, U3 where U2 and U3 are the reals. ठीक है. और V में ले लेता हूं 0, V2, V3. ठीक है. Because it satisfies the definition of a S. अब अगर मैं पहली डेफिनेशन सेटिस्फाई करवाता हूं u प्लस वी वाली, अब होना चाहिए कि u प्लस वी भी s के अंदर होना चाहिए. तो मैं दोनों को ऐड आउट कर लेता हूं. तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 इज 0. दिस बिकम्स अ u2 प्लस v2 एंड दिस बिकम्स अ u3 प्लस द v3. तो इट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ एस. ये जो सबस्पेस s है इसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है. इट मींस दैट वी हैव अ 0, u2 प्लस v2. u2 plus v2 is again another real and u3 plus v3 is again another real. So it belongs to be a set S. So this closed under addition. Yeah. Second, let alpha belongs to be any scalar. Let alpha is any scalar and I consider a u which is equal to be a 0, u2, u3. It belongs to be set S. Now I have to be check it out whether this alpha into the u belongs to be S. So I consider the alpha u. So this is equal to be alpha 0, u2 and u3. And this becomes equal to be alpha multiplied by 0 is 0. This is alpha into u2. This is alpha into u3. So this also belongs to be S. So it means that, so this S is a closed under vector addition and scalar multiplication. So S is closed under vector addition and scalar multiplication. And hence you can say that S is a subspace of V3. तो इस तरह से we can say that कि S जो है वो subspace है V3 का. ठीक है. अच्छा, इसी तरह से I will give you some more examples. तो एक और एग्जांपल लेते हैं subspace की ही. सर हाँ जी बेटा प्लीज. हमने ये प्रूव करवाया कि ये जो U और V है, जो एलिमेंट्स हैं S के, वो V3 की भी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं, तो V3 की उसका सबसेट हो गया. हाँ. तो सर हम ये नहीं बोल सकते कि जो सब S जो है वो V3 के इक्वल है, मतलब वो दोनों से S3 जो है, देखिए जो S है हमने क्या लिया है, हमने तो V3 के अंदर से एक ऐसी कलेक्शन, देखिए V3 क्या था? V3 का मतलब है एक ऐसी कलेक्शन जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, where xi's are belonging to be R, है ना. अब इसमें से मैंने एक ऐसी कलेक्शन ली है जिसमें मैंने बोला कि इट इज 0, उसका पहला एलिमेंट 0 होना चाहिए और बाकी कुछ भी हो सकते हैं, है ना.
उसमें मैंने तो यही बोला ना कि पहला एलिमेंट 0 और बाकी, अब देखिए हमारे पास ऐसी सब कलेक्शन, ये पूरी की पूरी कलेक्शन है, इसमें पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, तो दिस इज द हैविंग ए सच ए कलेक्शन व्हिच विल बी केम फ्रॉम दिस, तो ये उसी का सब पार्ट है। अब हमने ये चेक करना था कि क्या ये सब स्पेस है, कि जो मैंने वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिफाइन की थी उसी के अंदर क्या ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है सेट, ठीक है, तो वो हमने चेकआउट करेगा, तो दैट मींस बीइंग सैटिस्फाइड आउट देयर, so this is the way we are doing up। सर ये वेक्टर स्पेस एक रीजन है ना, जो वो स्पेस में जो वो देखिए प्रॉपर्टीज वेक्टर फॉलो कर रहा स्पेस है। क्या है, मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ। वेक्टर स्पेस हमारे पास एक तरह से स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब है, सपोज आउट, आपको ना लेमैन लैंग्वेज में बताते हैं कि सपोज आउट आप किसी मशीनरी में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो उस मशीन में अंडर सम कंडीशंस ही काम करना पड़ेगा, है ना, उस मशीन में अंदर सम कंडीशंस ही काम करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द कंडीशंस ऑन दैट मशीनरी दैट वी हैव टू बी फुलफिल आउट, कि इस मशीनरी में मुझे इतने बजे से लेके इतने बजे तक काम करना है, तो वट एवर द कंडीशंस आर देयर सच दैट आई विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट आउट देयर, तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं, कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए वगैरह, तो वो सारी की सारी 10 कंडीशंस है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने जो स्टडी किया था वो आपने स्टडी किया था 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर, है ना, जिसमें आपने उसकी जो वेक्टर्स की स्टडी की थी, उसके मैग्नीट्यूड को स्टडी कर लिया, उसकी डायरेक्शन को स्टडी कर लिया, आपने उसकी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को डिस्कशन नहीं किया था, आपने सिर्फ उसकी जो डिस्कशन की थी, मैं दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेता हूं, कि आपने फिजिक्स के अंदर या कहीं भी आपने जब वेक्टर्स को डिस्कशन किया था, आपने वेक्टर स्पेस नहीं डिस्कस किया था, आपने सिर्फ वेक्टर्स को स्टडी किया था उसकी डायरेक्शन की फॉर्म में, ठीक है, या आपने उसका मैग्नीट्यूड देखा बस, और कुछ नहीं, प्रॉपर्टी तो नहीं देखी और कोई इसके अलावा, यही देखा ना आपने, जो 2 चीजें। यस सर। यानी कि आपने चाहे वो 2 डायमेंशनल में देखा चाहे 3 डायमेंशनल में देखा, इसके बाद नहीं देखा। अब यहाँ पे मैंने Vn की बात कर ली, Vn में मींस आई कैन टॉक अबाउट हैविंग एन ट्यूपल्स, उसमें लिमिटेशन थी, आपने उसकी डायरेक्शन के ऊपर लिमिटेशन देख रखी थी, या 2 डायमेंशनल में देखा या 3 डायमेंशनल में देखा, अब हम n डायमेंशनल में देख रहे हैं। अब उसके लिए मुझे कुछ और प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ी, जिसको बोला गया अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज। अब अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज में काफी सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसमें मैंने डिस्कशन किया बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन कई तरह के हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एंड सो ऑन। अब ये कैसे डिफाइन आउट करेंगे? तो वो सभी की प्रॉपर्टीज को स्टडी आउट करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ ए सच ए स्ट्रक्चर व्हिच कैन डिफाइन ऑल द अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज, जिसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, तो मतलब कि आई कैन टॉक अबाउट द ऑल द अलजेब्रा, जिसमें हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और उसकी एडिशन प्रॉपर्टीज जो भी है, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन के अंदर ही आता है, जो हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं वो भी एडिशन के अंदर ही आता है। आपने देखा कि उसमें इनवर्स एलिमेंट की एग्जिस्टेंस होती है ना, तो वो सारी के सारी प्रॉपर्टीज की जो डिस्कशन है दैट विल बी कम अंडर अ वेक्टर स्पेस। नाउ आपने उसको एक टॉपिक दे दिया, नाम दे दिया, दैट इज अ वेक्टर स्पेस। क्लियर? यस सर। या तो these are properties are being discussed in a vector space, जिसमें हम अब आगे जाके उसकी कोप्लेनरिटी, प्लेनरिटी वगैरह भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे वो डिस्कस होंगी। अब अगर मैं उसमें डिस्कशन कर रहा हूँ तो मुझे अब इसकी डिस्कशन करनी पड़ेगी कि अब आगे जाके उसकी स्पैनिंग की, लीनियर कॉम्बिनेशन की, उसकी डायमेंशंस की, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे लेने चाहिए या कितना वगैरह उसका। देखो this vector space is a full course being run in the pure mathematics subject। जब मैं प्योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करूं तो ये एक पूरा का पूरा कोर्स चलता है। आपने तो एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, otherwise it is having a full course being run in the mathematics subject, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट की बात करूं या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं। इसके अलावा it will be extended to the many different spaces, अलग अलग स्पेसेस होती हैं जो दैट विल बी कम फ्रॉम दिस वेक्टर स्पेस। अब जैसे यहाँ पे एक लिनियरिटी की कंडीशन आ जाती है, अब वो लिनियरिटी की कंडीशंस कई बार दूसरी स्पेस या दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मुझे जरूरत ही नहीं है लिनियरिटी की तो देन व्हाई शुड आई यूज अप? तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस को एक्सप्लेन करना पड़ता है, प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया है।
जैसे Banach space है, Banach space is being given by the mathematician Banach in 1904, and then which is being further modified by the mathematician Fréchet in 1904. तो उसने further उसको further modify किया, and he gave up the structure known as a metric space, in which the distance is being induced up in the geometry. Anyhow, I'm not going in such a space out structure out there, but if you like to be go in a red of that, you can be go to the theory of a vector spaces and the study of spaces. ठीक है? तो अच्छा, anyhow, अब मैं discussion करता हूँ, further come back to our problem. So question is, check whether the given set S, मैं सेट S को ले लेता हूँ, x1, x2, x3, such that the product of the first two elements is 0, is a subspace of V3. अब ये अगेन S तो एक सबसेट तो है V3 का, पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक सबस्पेस होगा या एनीबॉडी, हाउ कैन वी हेल्प इट आउट, क्या ये सबस्पेस होगा? अगर नहीं होगा, अंडर व्हाट रीजन इट विल नॉट बी? यस, एनीबॉडी कैन हैव एनी आइडिया? देखिए अभी क्या है, हम सबसेट को एडवांसमेंट में लेके जा रहे हैं, सिर्फ सबसेट की बात ही नहीं हो रही, अब प्रॉपर्टीज भी साथ साथ में ऐड ऑन हो रही हैं। ठीक है, पहले जहां तक आपने डिस्कशन किया, आपने सिर्फ सेट का सबसेट देख लिया, अब हम एक स्पेस के अंदर हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर हैं, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज भी उसके सबसेट के अंदर होनी चाहिए, तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए हम उसकी सबस्पेस को डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज इट सेटिस्फाइज ऑल द algebraic properties of a V3. अब बताइए कि क्या ये सबस्पेस होगा? अब इसका मतलब समझ लग गया, इस सेट का मतलब क्या है? इस सेट का मतलब है we are considering those collections in which the product of the first two element is 0. होगा क्या सबस्पेस ये? नहीं सर, नहीं होगा। कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर रही है सर? वो एडिशन वाली कर रही है। या इट इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन। सपोज आउट, अगर आप कोई एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट इस सेट के अंदर से लेते हैं, सपोज यू, मैं कंसीडर कर लेता हूं 1 0 0, ठीक है, इट बिलोंग्स टू बी सेट एस, क्योंकि अगर मैं पहले दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेता हूं तो ये 1 into 0 0 हो जाएगा, है ना। अगर मैं से v लेता हूं, इट इज से इसी सेट में से ले लेता हूं 0 into 1, 0, ये भी एस के अंदर है, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी 0 है, तो इसका सम जो है वो भी एस के अंदर होना चाहिए। u, u प्लस v अगर मैं करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 0 plus 0 0। अब अगर मैं पहले दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेता हूं तो ये तो 1 आ रहा है, इट्स नॉट इक्वल टू 0, इट मींस दैट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू बी द सेट एस, so it is not closed under addition, under the vector addition. So S is not a subspace of the vector space having a 3 tuples. Clear? Any query? Any query here? Any query? Okay, so we'll go to the next example. Say again I'm taking about the tuples example. Okay, so check whether the set S, which is a collection of all those elements such that x1 plus x2 is equal to be 0. क्या ये होगा? अब इसमें मतलब क्या हुआ कि हमारे पास
ऐसी कलेक्शन है जिसमें पहले दो एलिमेंट्स का जो सम है वो 0 है. Suppose out you consider the two elements u and v belongs to be S such that अब मैं u ले लेता हूँ. ये होगा सर. होगा? Yes sir. Yes sir. So we have say I would just consider तो हम इसको प्रूव आउट कर लेते हैं. देखिए अगर मैं सपोज u लेता हूँ u1 u2 u3 और इसे मैं सेट S से अंदर से ले लेता हूँ तो इसका मतलब है कि सच दैट u1 plus u2 is equal to 0 होगा. और अगर मैं v लेता हूँ v1 v2 v3 ये भी मैं सेट S से अंदर से लेता हूँ. अगर मैं सेट S से ले रहा हूँ तो इसका मतलब है v1 plus v2 0 होगा. तो अगर इसका मतलब है अब मुझे प्रूफ क्या करना है, पहली प्रॉपर्टी कि u plus v should also be belong to be S, कि ये जो u plus v है वो भी S के अंदर होना चाहिए. तो अगर मैं u plus v करता हूं तो ये क्या आ जाएगा u1 plus v1 u2 plus v2 u3 plus v3. अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एस हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का जो सम है वो वो 0 होना चाहिए. अगर वो 0 हो जाता है तो इट बिलोंग्स टू बी एस. तो आई कंसीडर अप u1 plus v1 plus u2 plus v2. इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं. तो अगर मैं इसे कंसीडर आउट करता हूं एस्टीम इज सच दैट ठीक है. तो इसे मैं कंसीडर आउट करता हूं तो मैं क्या करता हूं u1 और u2 को इकट्ठा कर लेता हूं और v1 और v2 को इकट्ठा कर लेता हूं. और ऑलरेडी हमने ये assumption में ले रखा है कि u1 plus u2 is equal to be 0 है और v1 plus v2 is equal to be 0 है. तो मीन दिस इज इक्वल टू बी 0 plus 0. तो इसका मतलब है जो मेरे पहले दो एलिमेंट्स थे उनका जो सम है वो 0 आ गया. सो हेंस you can say this implies that u plus v belongs to be set S, कि ये जो u plus v है वो set S के अंदर है. ठीक है. सो इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. तो ये प्रूव हो गया कि ये क्लोज है अंडर एडिशन के. तो नाउ अब सेकंड प्रॉपर्टी मुझे चेक आउट करनी है कि क्या ये क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. तो आई जस्ट कंसीडर अप अल्फा belongs to be r. So let alpha belongs to be r. तो आई जस्ट कंसीडर द अल्फा इनटू u. तो अल्फा इनटू u का मतलब हो गया अल्फा टाइम्स u1 u2 u3. तो दिस इज इक्वल टू बी अल्फा u1 अल्फा u2 अल्फा u3. तो अब अगर ये मुझे प्रूव करना है कि ये S के अंदर है तो मुझे क्या प्रूव करना है कि पहले दो एलिमेंट्स का जो सम है वो 0 होना चाहिए. तो आई जस्ट कंसीडर द अल्फा u1 प्लस अल्फा u2. तो अल्फा मैंने कॉमन निकाल लिया u1 प्लस u2. तो u1 प्लस u2 तो ऑलरेडी हमने assumption में, क्योंकि u तो सेट S के अंदर से था है ना, u जो है वो सेट S के अंदर से है. तो u सेट S के अंदर से है तो इसका मतलब है u1 प्लस u2 जो है 0 होगा. So which is equal to be alpha into 0, which is equal to be 0. तो प्रूव हो गया अल्फा u जो है वो सेट S के अंदर बिलोंग कर रहा है. तो अल्फा u belongs to be a set S. So it is closed under scalar multiplication. Hence S is a subspace of V3. तो S जो हो गया सबस्पेस हो गया V3 का. ठीक है. तो S is a subspace of a V3. So say that I'm giving one more example, just try it out. अब मैं क्या करता हूं, say check whether again same question over the V3 ले रहे हैं अभी तो. It's a collection of all those V3 elements such that x1 square plus x2 square plus x3 square is less than or equal to be 1. Yeah. Is a subspace of V3. क्या ये होगा? Yes. Is it a subspace of V3? No, sir. No. No. Which property fails? The addition fail हो रही है. एडिशन भी फेल हो जाएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फेल कर जाएगी. अगर आप देखिए, अगर मैं इसे अल्फा से मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा x3
such that alpha square x1 square plus alpha square x2 square plus alpha square x3 square should be less than equal to be 1 होना चाहिए, पर वो क्या हो जाएगा, alpha square कॉमन निकल आएगा, तो it should be less, वो हमारे पास less than alpha square बन जाएगा, तो प्रॉपर्टी फेल हो रही है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज फेल हो रही हैं, तो S is not a subspace. तो ये सबस्पेस नहीं है। अच्छा, अब मैं थोड़े दूसरे एग्जांपल्स पे आते हैं, हम कुछ पॉलिनोमियल्स के ऊपर आते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि Pn जो था वो हमारे पास अभी सबसे पहले हमने डिफाइन किया आज के लेक्चर के अंदर कि Pn जो था इट्स अ सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स whose डिग्री इज लेस देन इक्वल टू Bn, है ना। और हमने बताया कि ये एक वेक्टर स्पेस होता है, इट्स अ वेक्टर स्पेस। अब इसके अंदर से कुछ सेट्स लेते हैं, अब वो चेकआउट करते हैं कि क्या वो सबस्पेस है या वेक्टर स्पेस है या नहीं है, वी कैन चेक इट आउट। सो द क्वेश्चन इज लाइक check whether we have a set S which is equal to be all the polynomials which belongs to be this collection P3. P3 means having a degree less than or equal to be 3 such that degree of this Px ये जो हमने set S के अंदर लिए is equal to be 3, इसको हमने फिक्स कर दिया, is a subspace of P3 or not, या अब ये बताइए कि क्या ये S सेट जो है P3 का सबस्पेस है? Yes, anybody? नो सर, नो सर। Which property fails? नहीं सर, होगा होगा सर, स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, दोनों ही देख रहे हैं, एडिशन भी हाँ, देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं। होगा सर। होगा सर, होगा सर, होगा? होगा अच्छा, होगा यस सर। so let I consider the Px belongs to be set S, so the Px is equal to be x cube plus a1 x square plus a2 x plus a3 belongs to be set S, ये S के अंदर है, इसकी डिग्री 3 है, और qx मैं ले लेता हूं से माइनस एक्स क्यूब प्लस a4, ये भी सेट S के अंदर है। अब अगर मैं px plus qx लेता हूं, what is the set now? a1x square plus a2x plus a3 plus a4, अब क्या इसकी डिग्री 3 है? नो सर। No, it does not belongs to be S now. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू की बजाय लेस देन इक्वल टू भी 3 की बात करता, देन इट इज अ सबस्पेस, क्योंकि वो तो उस टाइम पे तो सबस्पेस क्या, वो वेक्टर स्पेस ही बन जाता, वो P3 के इक्विवेलेंट बन जाता इन दैट केस, है ना। इसी तरह से मैं अगर इसको लेस देन इक्वल टू भी 2 डाल देता, देन इट इज अ सबस्पेस, बट अगर मैं इक्वल टू 2 डालता, इट्स नॉट अ सबस्पेस, ठीक है। बिकॉज अगर यहाँ पे आप देखें तो डिग्री ऑफ px प्लस qx जो यहाँ पे हमारे पास आई है वो 2 आ गई है, विच इज लेस देन 3। So degree of px plus qx is 2, which is less than 3. So S is not a subspace of the set P3. Clear? अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं ऐसे पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में। तो इससे काफी सारी एग्जांपल्स आप चाहे कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस के ऊपर ले लीजिए, चाहे किसी के ऊपर भी ले लीजिए, वी कैन बी टॉक अबाउट, बिकॉज़ देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशंस। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्वेश्चन के अंदर आते हैं तो सबसे पहले ना हमें स्पेस लेनी पड़ती है कि किस स्पेस में वो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड है, इसलिए वेक्टर स्पेस इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। बिकॉज अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के एडवांस स्टडी में जाते हैं ना, तो देयर आर अ सॉर्ट ऑफ स्पेसेस इन व्हिच the solution of a differential equations are being given up, ठीक है। तो anyhow the question है, say check whether
the set S, which is being given as the Px, belongs to be again I consider the set of a polynomials of a degree less than or equal to be 3, such that P1 is equal to be 0, is a subspace of P3. या अब बताइए मुझे जरा, यस सर होगा? अब इसका मतलब क्या है? सेट एस का बोले, सेट एस का मतलब बताइए क्या है? सर वो वाले पॉलिनोमियल्स का है ना जिनके कोएफिशिएंट्स का सम 0 हो जाएगा। नहीं, कोएफिशिएंट्स का सम नहीं है ये बता रहा है कि इट्स अ रूट, वन इज अ रूट। अगर आप इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को 1 डालते हैं तो वो 0 है, ऐसे पॉलिनोमियल्स, ठीक है? अब फिर से देखिए कि s मेरे पास एक ऐसी कलेक्शन है जिसको आप लिख रहे हो से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ऐसी कलेक्शन है सच दैट कि ये जो p1 की वैल्यू है वो 0 है। इसका मतलब ये है। अब इसका मतलब ये है तो इसका मतलब अगर मैं px जो मैंने पॉलिनोमियल्स की बात की है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू को 1 डालूंगा तो इसका मतलब है कि a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू बी 0, यानी कि a0 की वैल्यू मेरे पास आ गई, वो आ गई माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3, ये रिलेशन निकला है। तो इसका मतलब है मेरे पास जो सेट की s की कलेक्शन हो गई वो हो गई माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, such that this a1 a2 a3 belongs to be R, ये R के अंदर है। तो ऐसा सेट है ये S। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए कि क्या ये सबस्पेस होगा? अब इसको मैं थोड़ा सा रीराइट कर लेता हूँ सेट S को। तो दिस इज मीनिंग वी हैव अ a1 x minus 1 plus a2 x square minus 1 plus a3 x cube minus 1 such that a1 a2 a3 belongs to be R। अब बताइए कि क्या ये सबस्पेस होगा? चलो इसको चेक करके आइएगा, वी विल डिस्कस अप इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? वैसे तो सिंपल है, बता ही देता हूं मैं। इट्स सबस्पेस होगा अगर आप P और Q दो लेते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट S, ठीक है? अब P अगर मैं सेट S से ले रहा हूं तो इसका मतलब है P1 इज इक्वल टू बी 0 होगा। अगर मैं Q ले रहा हूं तो Q1 भी 0 होगा, है ना? तो अगर मैं P प्लस Q सेट ले रहा हूं, दोनों का सम ले रहा हूं, तो इसका मतलब है ये इसका सम 0 होना चाहिए। तो P ऑफ Q इंटू एक्स ले रहा हूं मैं, तो अगर ये सेट S के अंदर कब बिलोंग होगा? इट बिलोंग तब होगा अगर P प्लस Q एट द पॉइंट 1 0 हो जाए। तो यानी कि ये P ऑफ 1 प्लस Q ऑफ 1 0 हो जाए। तो ये तो ऑलरेडी हमने P और Q सेट S के अंदर से लिए हैं, तो ये हो गया 0 प्लस 0, तो ये तो बिलोंग कर गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी भी ऐसे ही प्रूव हो जाएगी, है ना? अगर मैं अल्फा ले रहा हूं, एनी अल्फा ले रहा हूं एनी रियल से, और P मैं ले रहा हूं S के अंदर से, अगर मैं P S के अंदर से ले रहा हूं तो उसका मतलब P ऑफ 1 0 होगा। तो अगर मैं अल्फा ऑफ P ले रहा हूं तो ये सेट S के अंदर तब होगा अगर अल्फा इंटू द P1 0 हो जाए। तो P1 तो ऑलरेडी 0 है, तो अल्फा इंटू P1 भी 0 होगा। तो दिस बिलोंग्स टू बी S, hence S is a subspace of a P3। ठीक है? एनी डाउट? सर हाँ जी बेटा प्लीज। सर अगर सबस्पेस है तो वो सबस्पेस खुद भी एक वेक्टर स्पेस होता है ना? क्या 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 क्या? आई डोंट गेट। जो एक सबस्पेस है वो हाँ खुद भी एक वेक्टर स्पेस होगा ना? हाँ हाँ, मतलब खुद भी वेक्टर स्पेस होगा। यस यस करेक्ट, वेक्टर स्पेस ही होगा। सो थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा प्लीज। सर एक सर लाप्लास से क्वेश्चन था सर, पूछूं?
व्हाट्सएप कर लो यार, नेक्स्ट क्लास ऑन हो गई होगी, वो बच्चे एंटर कर रहे हैं, ठीक है। आप शुड बी गिव मी व्हाट्सएप, सेंड कर दो, आई विल गिव यू रिप्लाई ओवर देयर, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।